Are you comfortable if I roam around? Yes. Okay. Now see, as she has introduced me, I am Dr. Bhavna Behel, newly appointed in Center for Teacher Education. Many of my students are sitting over here who knows me, and many of them are there who don't know me. Right? So today what we are going to do, today we are going to construct something. As my topic, the role of social and cognitive constructivism in the teaching and learning process. You can see this topic. The topic was given to me and I was supposed to construct some knowledge about it among you people. First, please let me know how many of you are comfortable in Hindi and how many of you are comfortable in English? Both. Do I speak only in English or should I use bilingual? Bilingual. How many says bilingual? Raise your hand. Okay. Constructivism का मतलब क्या होता है? Anyone can tell me what do you understand by constructivism? When we say to construct, what does it mean? क्या construct करते हैं हम? Forget about knowledge. Just if I say construct, what comes to your mind? Building. Very good. First thing, construction. We always know construction versus building. What they are build or what they construct. क्या बनाते हैं वो building में? Infrastructure. Infrastructure में क्या होता है? घर होता है और क्या होता है? फ्लोर होता है. ओके, फ्लोर घर में ही होता है ना? What? Roads. Very good. Roads. And do they construct schools? Yes. Schools are being constructed? Okay, so we are going to see in constructed school how teacher construct the knowledge among his or her students. Okay. Many of you are pursuing B.Ed over here. Many of you are pursuing Acharya over here, right? Many of you might be go for further higher studies, for research or for some other thing. It is very important to know that how knowledge is being constructed. आपका जो ज्ञान है वो कैसे बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्ञान किस तरीके से आप एक बच्चे को दोगे, आप एक टीचर हो या आप एक पेरेंट हो या आप एक अभिभावक हो, तो आप किस तरीके से एक बच्चे को नॉलेज दोगे? हाउ यू आर गोइंग टू इम्पार्ट नॉलेज टू अ चाइल्ड? व्हाट यू विल डू फॉर हिम? आप उसको किताब खोल के ज्ञान दोगे? किताब खोल के ज्ञान दोगे ना? से यस और नो? आई थिंक वेयर इज द सेक्रेटरी? सेक्रेटरी? You are secretary na? Student welfare? No? President. Acha, president. Arrange one more round of lunch for them. It seems they don't have energy after having their lunch. Okay. Coming back to the topic. See, whenever construction of knowledge is done, ठीक है, हम क्या सोचते हैं? टीचर के पास आप क्लास में जाओगे, अभी क्या सोच के आओगे? कोई भावना मैम है, आएंगी, आपको थोड़ा सा लेक्चर देंगी, then you must be knowing the topic. अपना इंटरनेट से क्वेश्चन प्रिपेयर करके आओगे, है ना? मे बी आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे. आप वो नहीं पूछोगे जो मैंने बताया, वो पूछोगे जो आप प्रिपेयर करके आए हो, राइट? है ना? नहीं? ओके, देन गुड. नाउ सी, जो ज्ञान होता है ना, वो आप कभी भी किसी को सिर्फ समझा के नहीं दे सकते हो. ठीक है? कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, यहाँ पे दो टर्म लिखे हैं, सोशल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. There is one more constructivism, that is radical. अभी हम उस पर आते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म के तीन तरीके क्या होते हैं. पहले आप ये समझो कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है. Where is that? If I say constructivism, it means that it's a learning theory. Learning theory which says that your student or the person who is taking knowledge is plays an active role. मतलब वो एक सक्रिय भूमिका निभाएगा लर्निंग प्रोसेस में.
सक्रिय भूमिका का मतलब क्या हुआ? अभी मैं बोलती जा रही हूं, आप लोग सुनते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? यू ऑल आर पैसिव। एक्टिव हो? नहीं हो? नहीं हो ना? पैसिव कैसे होगे? सॉरी, एक्टिव कैसे होगे? जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, जब आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म दो मेन साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, एक है जैन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, एक थे वाइगॉस्की, उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। ठीक है, तो ये दो नाम भले आप भूल जाओ, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है इसको याद रखो, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज बिल्डिंग सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म से हो रही है। और आगे का जो समय आएगा, जिस तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी लर्निंग के लिए निर्भर होते जा रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड मोड, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं, उस तरीके से होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म का सबसे पहला बिलीव क्या है? जितने पार्टिसिपेंट हैं लर्न करने के लिए, दे ऑल आर एक्टिव। एक्टिव मोड पे हैं, पैसिव मोड पे नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एक्टिव एंड पैसिव, है ना? तो अब पूरे क्लास में आप लोग पैसिव रहना। प्लस सेकेंड थिंग इट सेज इज, जो नॉलेज है ना वो पहले से नहीं है, मतलब किताबी ज्ञान से परे है नॉलेज। मतलब हम किताब नहीं लिखें, किताब लिखें, लेकिन किताब लिखने का एक समय होता है ना? उसको हमको आज के प्रैक्टिकल संदर्भ में समझना है। तो जो नॉलेज होगी वो आपके टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाएगी। अगर टेक्स्ट बुक में एक बात लिखी है तो उसी पर 10 बातें और आपका विद्यार्थी बिल्डअप करेगा। मतलब टेक्स्ट बुक आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, उस पर आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, और इस बिल्डिंग बनाने में टीचर की भूमिका क्या होगी? टीचर सिर्फ एक मेंटरिंग का काम करेगा। टीचर आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। आप अपनी नॉलेज को खुद डेवलप करोगे एज अ स्टूडेंट। ठीक है, अभी नॉलेज डेवलप करते हैं। ठीक है, व्हाट यू कॉल दिस? मटका? दिस इज मटका? हाँ, cup, he said cup. Okay, how it is formed? How it is formed? इसको कैसे बनाया गया है? मड से। क्या इस तरीके के और टूल्स को या यूटेंसिल्स को बनाया जा सकता है? ओके, टेल मी व्हाट, एक बताओ और यूटेंसिल्स बताओ जो ऐसा बनाया जा सकता है। पॉट। ओके, पॉट को हिंदी में मटका नहीं बोलते हैं, दिस इज कसोरा और पुरवा। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स यू कैन मेड थ्रू दिस मड? और कौन सा यूटेंसिल्स आप बना सकते हो मड के थ्रू? ब्रिक। वेरी गुड, बट ब्रिक इज अ यूटेंसिल? आई सेड यूटेंसिल। और क्या बना सकते हो? what he is saying? मनी बैंक। हाँ, राइट, वेरी गुड। हिंदी में क्या बोलते हैं मनी बैंक को? डोंट नो? गुल्लक। ऑल राइट, गुड। एंड समथिंग एल्स फ्रॉम दैट साइड? You know, in every class, back benchers are always intelligent people. जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दिस इज अ फैक्ट। सो समथिंग फ्रॉम बैक साइड, आप क्या बना सकते हो? बॉटल नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना? सो सी, दिस इज वॉट आई हैव नॉट टोल्ड यू कि इससे क्या बना सकते हैं, आपने खुद बताया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब यही होता है, टीचर आपको एक आइडिया देके छोड़ देगा और आप उस पर अपनी नॉलेज को डेवलप करोगे। ठीक है, सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज दिस, बिल्डिंग अप ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल स्ट्रक्चर। जो आपने कभी देखा होगा, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे, जब आप उससे नॉलेज को बिल्डअप करते हो तो हम उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल
are tenets, there are certain beliefs. अगर कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगी तो उसकी 4 बिलीव्स हैं. क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो नॉलेज है वो जो पार्टिसिपेंट ले रहा है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, जो आपका नॉलेज बन रहा है वो नॉलेज अडैप्ट होनी चाहिए. क्लासरूम में होता है ना, आप बैठे तो हो फिजिकल, लेकिन आप मेंटली कहाँ पर हो? सारनाथ में हो या आईपी मॉल में हो? यू नो आईपी मॉल? नो? अच्छा, जीएचवी मॉल. हाँ, जीएचवी मॉल यू नो. गुड. ओके. सारनाथ आई फील यू ऑल नो, राइट? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की बात करें, पहला एक्टिव हो आप, मतलब पार्टिसिपेट करें लर्निंग में. दूसरा, एब्जॉर्ब करें या उसको आप अडैप्ट करें. अडैप्ट मीन्स आपके नॉलेज सिस्टम का जो रिजर्वॉयर है वो इंक्रीज हो रहा है. जो आपका ये मेंटल ब्रेन है ना, जैसे उसने गुल्लक कहा, गुल्लक में जब हम पैसे डालते हैं तो गुल्लक भरती है. माइंड में क्या डालेंगे? नॉलेज. तो नॉलेज बढ़ेगा. वैसे और कब डालेंगे? जब हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे. तो आप मेंटली रेडी होने चाहिए नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है. ये 2 टेनेंट हुए. एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या हुआ? एक्टिव पार्टिसिपेशन. देन जो भी नॉलेज है वो थोड़ा सेंस बनानी चाहिए, मतलब आपके एक्सपीरियंस से मिलना चाहिए वो. ठीक है. अगर मैं आपसे बोलूं, यू ऑल हैव सीन ट्रेन्स. रेलवे सबने देखा है? रेलवे कैसे बनती है ये आपने देखा है? नो. अगर मैं आपसे बोलूं चलो खड़े हो जाओ और मुझे प्रोसीजर बताओ किस तरीके से रेलवे इंजन्स बनते हैं, आप बता पाओगे? नो ना. तो नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे का थोड़ा सा पिछला एक्सपीरियंस हो. मटका मैंने पूछा, ये मिट्टी वाला, वो आपने बताया क्योंकि वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंजन कैसे बनता है, वो नहीं देखा होगा. तो टीचर को ग्रेजुअली अगर इंजन कैसे बनता है वो बताना है तो ग्रेजुअली उसको लेके जाना होगा वहाँ पर उसके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से. ठीक है. तो तीसरा टेनेंट या बिलीफ कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या होगा कि हम हमेशा अपनी क्लासरूम में ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने निकाल कर या ट्रिगर करेंगे जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में हो. ओके. देन फोर्थ इज, जो आपकी नॉलेज है, जो आप नॉलेज बिल्डअप कर रहे हो, दैट शुड बी सोशली, कल्चरली एंड बायोलॉजिकली बिल्डअप. दैट मीन्स जो उसकी रूट है आपके आसपास होनी चाहिए. अब मैं बोलूँ चांद में किसने घर बनाया, चांद में कैसे घर बनेगा, वी डोंट नो, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है. मून पे जाकर एक बिल्डिंग बनाना, वी डोंट नो हाउ टू मेक, बिकॉज उसका लैंड फॉर्मेशन कैसा है वो ही नहीं हमें पता है, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ माउंटेन्स टेरेन में कैसे बिल्डिंग बनेगी, प्लस डेजर्ट में कैसे बनेगी, प्लेन्स में कैसे बनेगी, दैट यू कैन टॉक अबाउट. आप उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हो क्योंकि वो आपके सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा है. लेकिन एक मून पर किस तरीके से या दूसरे प्लैनेट पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट? तो कल्चरली, सोशली, बायोलॉजिकली आपकी नॉलेज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. नॉलेज जो बिल्ड कर रहे हो कोई सेंस बनाना चाहिए, प्लस आप एब्जॉर्ब करो नॉलेज को और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ओके. तो ये 4 बिलीव्स हैं, इनके बिना आपका कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम पॉसिबल नहीं है. देन this all process result in 4 kind of constructivism. There are 3 kind of constructivism. यहाँ पे टॉपिक पे 2 ही कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है, लेकिन हम तीनों को समझेंगे, तीनों क्या होते हैं. ठीक है. पहला कंस्ट्रक्टिविज्म जब आता है दैट इज योर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. अगर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन में कुछ मेंटल इमेजेस बन रही है. इट इज mental process. Cognitive constructivism means information is being processed in your brain. जो information है वो past experience से आपके brain में process होना शुरू हो गई है.
सेकेंड इज योर रेडिकल. रेडिकल में क्या होता है, जहां आपका कॉग्निटिव खत्म होता है वहां आपका रेडिकल स्टार्ट होता है. आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आप उसमें लॉजिक ढूंढोगे. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में हम लॉजिक ढूंढते हैं, रिफ्लेक्शंस लगाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के. मान लो आपने कोई एक सिचुएशन लिया और उसमें आपने एक इमेज बनाया कि अगर हमको यहाँ से सारनाथ पिकनिक पे जाना है तो हमको कितना टाइम लगेगा, कौन सा हमको व्हीकल करना पड़ेगा, क्या क्या सामान हमको वहाँ लेके जाना होगा. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैसी नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है, कॉग्निटिव, क्योंकि आप इसमें मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हो. उसके बाद वहाँ जाकर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे. क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, बारिश हो सकती है, आपको एंट्री नहीं मिल सकती, मे बी सम वीवीआईपी इज देयर, आपको एंट्री डिनाई हो सकती है. तो ये सारे केसेस में आप क्या करोगे, जब लॉजिक लगाकर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, दैट इज योर रेडिकल. ठीक है, रेडिकल मतलब होता है एक्सट्रीम. हम एक्सट्रीम केस में जब जाते हैं दैट इज टर्म्ड एज रेडिकल. तो जब हम कंस्ट्रक्टिव रेडिकल की बात करते हैं इसका मतलब होता है यू आर पुटिंग इट लॉजिक टू योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है, मान लो मैंने बोला किसी को चोट लग गई, ऑफ कोर्स आप वहां पे जा रहे हो, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो आप क्या करोगे, बोलोगे चलो एक फर्स्ट एड बॉक्स रख लेते हैं, राइट. आफ्टर दैट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज देयर. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज डेज इट इज गिविंग हाई वैल्यू इन योर लर्निंग सिस्टम. Social constructivism means that you interact among your peer society and in different cultures, environment and you learn. यहाँ पे कितने लोग हैं जो वाराणसी से नहीं होंगे, राइट. आप एक डिफरेंट कल्चर में आए हो, तो इस कल्चर में आपने क्या सीखा, सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा ना. What you have learned in this culture, वो आपका social constructivism होगा. ठीक है, anyone can tell me something which was not known to you but you came to Varanasi and in the culture of Varanasi you have learned something. Now see, learning from your social arena is also very important. है कि नहीं. जब आप बुक से पढ़ते हो इट इज ओनली कॉग्निटिव. ठीक है, बुक से पढ़ना कॉग्निटिव, उस पर लॉजिक लगाना रेडिकल, अपने पीयर से, आसपास के इन्वायरमेंट से समझना इज योर सोशल. ओके ओके, आई शेयर अ स्मॉल स्टोरी. आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल, क्लास 11th and 12th. ओके, एंड यू नो PTM, parents teacher meeting. One parent came and their child was like not interacting with anyone and he used to be absent for number of times. Then when his mother came, I told her that ये आता नहीं है, absent होता है बहुत ज़्यादा. तो that child said, मैं क्या करूँ, पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर, बहुत समय एनुअल डे की प्रिपरेशन, स्पोर्ट्स डे की प्रिपरेशन, बच्चे बाहर चले जाते हैं, क्लास में पढ़ते नहीं हैं. You know what mother said? Being a teacher, I didn't say anything. The mother said, तुम अगर बच्चों के बीच में बैठोगे, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, अगर तुम उनके बीच में बैठोगे then also you will learn. जो तुम्हारा वो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक ज्ञान होगा और वो भी तुमको काम आएगा. कैसे काम आएगा, पढ़ लिख के आपको कहाँ जाना है, इन्हीं के बीच में जाना है ना. तो आपको उनको भी समझना पड़ेगा that how you should deal with such kind of people. So social and cultural constructivism is also a very important part. इसीलिए हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल में सब अलग अलग फैमिली से आते हैं और सबका कल्चर डिफर करता है. नो मैटर आप सेम कम्युनिटी के हो, आप सेम रीजन के हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर हर घर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है. तो यू लर्न. So that is why social interaction is also very important. Many things are not taught to you, but still you learn. How you learn?
When you freak about with your friends or you freak about in a group, then only you learn. है ना? जब आप ग्रुप में घूमते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप वो चीज़ें लर्न करते हो जो आपको क्लासरूम में या किताबी ज्ञान में नहीं मिलती है. राइट? अच्छा, अब कोई बताएगा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? देखें कौन कितना एक्टिव है. सबकी आंखें नीचे हो गई. See what we have discussed. I'm just giving you a short recap. And one thing, try to speak. आप जितना बोलोगे उतना सीखोगे और आपकी पर्सनालिटी उतनी निखर कर आएगी. इसलिए बोलना सीखो. And remember one thing. कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता अगर आपका इंटेंशन पूछने का सही है. ठीक है? No question is a silly question if your intentions are correct. And if you are putting up a question with wrong intention, every question is wrong. तो आपका क्वेस्ट है, आपकी जिज्ञासा है, आप पूछना चाह रहे हो तो पूछो. ठीक है? एंड अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन करो, क्योंकि इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म सोसाइटी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सा है आप बताओ, जो सोसाइटी से रिलेट करता है. यस, फीमेल इन येलो. यस, social constructivism. Which constructivism is related to logic? Radical. Which constructivism is related to your mental processing? And all constructivism is related to what? Building upon past experiences and reflections and experimentation. ठीक है? आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपेरिमेंट्स है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना. एक्सपेरिमेंट्स करने का मतलब क्या है? कोई आपको बोलेगा उससे बात मत करना. होता है ऐसा? ही और शी इज नॉट गुड, ऐसा होता है कि नहीं? एवरीवन इज गुड. यस, वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड. इफ एवरीवन इज गुड देन वेरी गुड. एंड इफ एट टाइम्स पीपल से डोंट टॉक टू दैट पर्सन इज नॉट गुड. ठीक है? तो आप क्या करोगे? नहीं बात करोगे? हाँ, करेंगे ना, ज़्यादा बात करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन नेचर ऐसा है, हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि थोड़ा सा इसके साथ अनुभव लेके देखते हैं कैसा है. राइट? तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होगा और फिर बाद में पता चला उस पर्सन ने आपको डिच किया, आपको धोखा दिया, फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाओगे, हाँ उसने सही बोला था, है ना. समटाइम्स यू फाइंड नो दिस पर्सन इज गुड, उसने गलत बोला. तो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन ऑन इट, ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म बनाता है. ओके? अब हमने 3 कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी है यहां पर. तो क्या एक कॉमन टीचिंग मेथडोलॉजी, पैडागॉजी इज मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, ओके, क्या तीनों की एक कॉमन टीचिंग मेथडोलॉजी पॉसिबल हो सकती है? अगर हम तीनों को मिलाकर एक टीचिंग मेथड बना दें जहां पे मेंटल कॉग्निशन भी हो, लॉजिक भी हो, सोशल इंटरेक्शन भी हो, तो क्या एक टीचिंग मेथड बनेगा? बनेगा. उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कहेंगे. ठीक है? उसमें 8 फैक्टर्स होने चाहिए. ऐसी क्लासरूम में आपके 8 फैक्टर्स होने चाहिए. देखो, पहला फैक्टर क्या होगा? यहां पर आपकी जो लर्निंग है ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में हो. अब ये कैसे पॉसिबल है? ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. मान लो एक चैप्टर है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. देयर इज अ चैप्टर इन क्लास 10th CBSE बोर्ड इन इकोनॉमिक्स, दैट इज मनी. हाउ यू आर गोइंग टू टीच इट? मनी एंड बैंकिंग कैसे पढ़ाओगे? कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाना है. देखो, हर क्लासरूम कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता एट प्रेजेंट सिनेरियो, फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बनाए. ये कह रहा है कि रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए. आप क्लासरूम, एक एग्जाम्पल ये है, आप उनको बैंक ले जाओ, बैंक ले जा सकते हैं, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ टू बी डन. ले जा सकते हैं, वहाँ जाके हम वो पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, वो रियल इन्वायरमेंट हो जाएगा. अगर आपको स्कूल में ही पढ़ाना है, नहीं लेके जाना, तो आप वैसा मिनिएचर क्रिएट कर सकते हो क्लासरूम में. बैंक का रोल प्ले करा सकते हो स्टूडेंट से.
अपने आप मैनेजर बनेंगे, अपने आप कैशियर बनेंगे, अपने आप कस्टमर बनेंगे। वो छोटा सा जब रोल प्ले करेंगे ना, अपने आप पूरा चैप्टर सीख जाएंगे। ठीक है, तो रियल इन्वायरमेंट में उससे क्या होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा, दे विल गेन दैट एक्सपीरियंस। सो पहली शर्त कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की होती है कि वो हमेशा रियल इन्वायरमेंट में या ऑथेंटिक इन्वायरमेंट में हो। एक और एग्जाम्पल है, आप सबको पता है वोटिंग कैसे होती है। पॉलिटिकल साइंस में सीबीएसई में क्लास 9th में एक चैप्टर है दैट अबाउट वोटिंग। जब हम एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज यू गो एंड वोट फॉर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसीजर भी आप बच्चों को करके दिखा सकते हो। ठीक, इस तरीके से बहुत हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब बोलोगे मैथ्स है, तो मैथ्स में 70 + 39 कैसे करेंगे, ये कैसे दिखाओगे? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट, नंबर्स आर एब्स्ट्रैक्ट, इजंट इट? ये उनको रियल वर्ल्ड में अगर दिखाना है, कैसे दिखाओगे? सिंपल, टेक 70 स्टोन्स, पेबल्स, 70 में से आप 39 माइनस कर हटा दो और उनको बोलो बताओ कितने बच्चे, वो काउंट करके आपको बता देंगे। अगेन इट्स अ कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो एनीथिंग व्हेन यू एक्चुअली विजुअलाइज इन फ्रंट ऑफ देम, दैट इज रियल। ओके, देन इट्स सोशल निगोसिएशन एंड मीडिएशन। सोशल निगोसिएशन कैसे होता है? थ्रू लैंग्वेज। यू नो, व्हेन आई केम हियर इन माई इंटरव्यू अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा? वन थिंग आई सेड, आफ्टर नोइंग द स्टूडेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दैट आई विल फेस प्रॉब्लम इन लैंग्वेज बिकॉज आई डोंट नो तिब्बतन। ठीक है, तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ये ओवरकम होना चाहिए। तो कैसे ओवरकम हुआ? एक लैंग्वेज है जो आप भी जानते हो, आई ऑल्सो नो, राइट? तो हम उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ जो आप नहीं समझते और आप ऐसी लैंग्वेज में बोलो जो मैं नहीं समझती, सोशल मीडिएशन कभी नहीं होगा। सोशल मीडिएशन के लिए हमको हमेशा एक मिडिल पॉइंट में आना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा आप आओ, थोड़ा सा हम एडजस्ट करें, देन यू विल हैव अ पर्टिकुलर सोशल मीडिएशन एंड निगोसिएशन, जिससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट? सोशल निगोसिएशन और मीडिएशन में नॉलेज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ योर दिस कंटेंट एंड स्किल शुड बी रेलिवेंट टू द लर्नर। कंटेंट कैसे रेलिवेंट हो सकता है लर्नर को? यू आर बिजी इन योर मोबाइल बिल्डिंग सम नॉलेज। I said last benches are intelligent. It seems that you are super intelligent. Already read. Okay. What about your content and skills? Content and skills relevant होने चाहिए. As I said, taking the example of moon. हम moon की बात क्यों करेंगे? अगर मैं बोलूँ कि moon पे कैसा प्लेग्राउंड बनेगा, ये बना के बताओ रोल प्ले में, आप बता पाओगे? नहीं। अगर मैं बोलूँ आप किस तरीके का आइडल स्कूल चाहते हो, ये आप रोल प्ले में बता सकते हो, राइट? तो जो भी आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है या जो भी आपकी स्किल डेवलप हो रही है, रेलिवेंट होनी चाहिए आपके सिलेबस से और करिकुलम से, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इट शुड बी इन द रीच ऑफ योर लर्नर, मतलब लर्नर उसको समझ सके, उसकी एज और मेंटल एबिलिटी के बराबर होना चाहिए। एज के बियॉन्ड हम उसको चीज़ नहीं दे सकते। ये एक पर्टिकुलर यूटेंसिल है, इसमें हम पानी भर सकते हैं, एक लिमिट तक भर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा भरेंगे ओवरफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमें क्या देखना है, उतना ही भरें उसके दिमाग में या उतना ही उससे हम निकालें जितना वो ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। देन स्टूडेंट शुड बी असेस फॉर्मेटली, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि आपने थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद थोड़ा सा पूछ लिया उनसे। इससे क्या होगा, चंक्स पढ़ाने के बाद हम बच्चे से इंटरैक्ट करके, क्रॉस क्वेश्चन करके पूछते जा रहे हैं, जिससे बच्चे को ये समझ में आए कि उसको आया है कि नहीं, और टीचर को भी समझ में आए कि टीचर समझा पा रहा है कि नहीं।
ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है? टीचर पढ़ाता जाएगा, बच्चा सुनता जाएगा, नॉलेज डेवलपमेंट नहीं होगा, टीचर का भी टाइम वेस्ट, स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट, टीचर की भी एनर्जी वेस्ट, स्टूडेंट की भी एनर्जी वेस्ट, एंड रिजल्ट विल बी ज़ीरो एट द एंड ऑफ द सेशन. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं, बीच बीच में इंटरैक्शन हो. इंटरैक्शन कैन बी इन एनी फॉर्म, डिबेट, डिस्कशन, पेपर पेन टेस्ट or objective test, any kind of test can be taken. Okay, after that student should be encouraged to be self regulatory and self mediated and self aware. Self regulatory is important. आप नॉलेज बिल्ड करते जा रहे हो. आई सेड कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद बिल्डअप करता है. अगर वो बिल्डअप करता जाएगा, टीचर को एक पॉइंट पे उसको रोकना होगा, है ना, वरना वो बियॉन्ड द रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा. तो दैट शुड बी रेगुलेटेड. टीचर उसको बताए कहाँ पर आपको कितना बैलेंस बना के चलना है अपने नॉलेज कंस्ट्रक्शन में. देन टीचर सिर्फ गाइड का काम करेगा, टीचर स्पून फीडिंग नहीं करेगा, या जो बुक में लिखा है आके आपको वॉमिट नहीं करने वाला टीचर. टीचर क्या करेगा? जो बुक में लिखा है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बियॉन्ड आपको बताएगा. लास्ट वन इज टीचर शुड इनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव. मतलब एक ही पॉइंट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए तो उसको समझने में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एंड दैट पर्सपेक्टिव शुड बी एकोमोडेटेड. डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एकोमोडेट करना आना चाहिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मतलब अगर ये कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, तो सबका व्यू लेकर एक कंक्लूजन पर आना ही कंस्ट्रक्टिविज्म है. और टीचर को इतनी समझ होनी चाहिए कि कैसे सबके आइडिया को एसिमिलेट करके एक कंक्लूजन पर आ सके. ओके, तो आपका नॉलेज बिल्डिंग कैसे हो रहा है? टीचर सिर्फ बाहर से आपको मेंटरिंग कर रहा है, बीच में आप नॉलेज खुद बना रहे हो. ओके, आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो. टीचर आपके पर्सपेक्टिव को लेके करेक्ट कर रहा है, जहाँ पे आप रॉन्ग हो आपको सही कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर classroom if your classroom is constructive. Okay, now the last thing in this PPT is what are the stages of your constructivism. 5 stages हैं आपके constructive. इसकी first stage is inviting ideas. Can we invite some idea over here? कोई भी एक आइडिया दो जिस पे आप बात करना चाहोगे. How many of you are from philosophy? यहाँ बहुत लोग philosophy से है ना? Yes, yes, raise your hand. I am also from philosophy. No one? Would you like to talk on any topic? Philosophy, what is philosophy? Say yes or no. Or would you like to talk about today's lunch? That will be more good. Okay, let's talk about that. Is it okay with everyone? Yes? Okay. Inviting idea. We have invited one idea. Stage 1, done. Stage 2, exploration. Now who will explore? What was in the lunch? Rice, dal. Rice, dal, and rice was nice? Nice? Oh, good, very good. Okay, first we have to just explore. What was the menu? Explore? Mushroom and? Karela. Karela was also there. What Karela we call in English? Bitter gourd. Okay. And what else was there? Chapati was there? Yes. Chapati was there. Papad. Very good. And? Laddu. Salad was there? Salad was there? Salad. Yes. You only know how to smile? Okay. And laddu. Yes, laddu. Anything we have missed out? No. So we have invited one idea. On that idea you have built up the explore. You have just explored. Now what we have to do? Preposition. Now tell me, how was the taste? Which thing you like and which thing you did not like and why?
Karela was not good? Why? Taste was bitter. Karela is always bitter. If you will eat Karela and you will think that you will have a sweet taste, how it is possible? Too much? Okay. Something else? What? Without meat. Without? Meat. Acha, without meat. There was no non-veg. He was missing that. Okay. Oh, okay. This is an idea. We have to assimilate all ideas. And from this side? You all are so good. जो भी दे दिया खा लिया. कोई खराबी नहीं है. Very good. ओके नाउ सी, इसमें आपके इतने प्रेपोजिशन आए ना. अब यहाँ पर टीचर का काम क्या होता है? आइडिया डेवलप एक लिया, उसमें एक्सप्लोर किया, उसके बाद उस पर बात की. उसके बाद टीचर का काम होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है तो उसको ठीक करना. मिसकंसेप्शन क्या है? करेला कड़वा था. करेला तो होता ही कड़वा है ना. एंड बट डू यू नो करेला इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, है ना. सो यू शुड ईट करेला, whether it is kadwa or whether it is not. After Karela you can have laddu. So your preposition is talking about removing the misconception or bringing about more positive point of that particular idea. जो आपने idea develop किया ना, उसके और कितने channels हम खोल सकते हैं. सोचो आपने बोला चपाती थी, चपाती नहीं होती तो और उसका ऑप्शन क्या हो सकता था? राइस तो था ना. और क्या ऑप्शन? मोमोज, कीमो. व्हाट इज इट? कीमो. अच्छा, ओके. लाइक नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन बी देयर. ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना ये प्रीपोजिशन में आता है. थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और उसकी डेप्थ में जाओ और उसको एक्सप्लेन करो. और फिफ्थ स्टेज में जाकर अपना इवैल्यूएशन करो और एक कंक्लूजन बनाओ. ठीक है, दैट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज. तो आज आपने क्या नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया? अबाउट फूड, है ना. फूड का क्या नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया कि एक आपने आइडिया लिया, उस आइडिया पे आपने एक्सप्लोर किया. एक्सप्लोर करने के बाद उसके प्रेपोजिशंस देखे, क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स है. मिसकंसेप्शन आपने दूर किया, उसके बाद और डेप्थ में गए और उसके बाद उसको कंक्लूड किया. दैट इज योर कंस्ट्रक्टिविज्म. ओके, नाउ माय पार्ट इज डन and your part starts. So if you have your questions, you are most welcome to ask. If you want to ask around this, you may ask. If you want to ask anything about education system, you are free to ask. Otherwise I will ask. Again I will ask. कुछ भी क्वेश्चन आपको एजुकेशन सिस्टम से पूछना है, इससे पूछना चाहते हो, इससे पूछ सकते हो. Anything about education system, you are free to ask. Because I have one question which I would like to ask from you people. Otherwise you keep me engaged by asking some question. Yes. Hi, it's on. Good afternoon. I have very small questions. You have mentioned that you shouldn't have to spoon feeding. तो हम अगर जैसे प्राइमरी बच्चों को हमको पढ़ाना चाहिए तो उसको विदाउट स्पून फीडिंग हाउ शुड वी टीच? नो, वेरी गुड क्वेश्चन. गुड. प्राइमरी बच्चों को अगर आप सोचो कि स्पून फीडिंग कर रहे हैं, इट इज़ वेरी रॉन्ग. बिल्कुल नहीं करना. स्पून फीडिंग मतलब आप उनको खाना खिला दो, ठीक है, स्पून से, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए आपको नहीं करना. उनको पढ़ाने के लिए यू नो देयर इज़ अ टर्म इन फिलॉसफी, नेचुरलिज्म. मतलब उनको नेचर में छोड़ दो, वो अपने आप सीख जाएंगे. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके प्री प्राइमरी जिसको हम कहते हैं 1, 2, 3 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप उनको बैठा कर रटाओगे कोई चीज़, दे आर गोइंग टू फॉरगेट इन द कोर्स ऑफ टाइम. एक स्पैन आएगा जो आपने रटाया होगा ना, भूल जाएंगे. जब वो खुद से, उनको ऐसे प्रिपेयर करो कि वो खुद से लर्न करना स्टार्ट करें. कैसे करेंगे? अगर आपको उनको मैथ्स बताना है, उनको, छोटे बच्चों को क्या पसंद है? खेलना, नेचर में रहना. आप उनको नेचर में ले जाओ. आप उनको काउंटिंग सिखाना चाहते हो, बच्चा नहीं सीख रहा,
कुछ बच्चे होते हैं अच्छे, आप जैसे बैठ के सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं सीखते, तो उनको कैसे सिखाओगे? नेचर में ले जाओ, बोलो पेड़ पे कितना ट्री बर्ड्स है, ठीक है, कितने फ्लावर्स हैं, आपको इस कलर के कितने फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये कौन सा कलर है, उस तरीके से आप सिखा सकते हो उनको। अगर आप उनको बोलोगे नहीं तुम बैठो मैं तुमको पढ़ाऊंगा और ड्रिलिंग करता जाऊंगा, आप ड्रिल हो जाओगे, बच्चा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो सब बच्चे पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा स्कूल है, लेकिन सब फर्स्ट नहीं आते, है ना, और सब इंटेलेक्चुअल नहीं बनते। रीज़न इज़ दिस ओनली। इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज़म को बढ़ावा मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, कि हमको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, उनके ऊपर डालना नहीं है, ठीक है। और छोटे बच्चे को आप जितना इस तरीके से सिखाओगे उसको उतना लंबे समय तक याद रहेगा और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। ओके, समथिंग एल्स? यस। I have one general question. If there are 30 students in the school, one student always will be first position in the class, and also some students are fail in 2 subject and 3 subject and 4 subject. So why they are becoming different, ma'am? Why this difference? Okay. Why they are becoming different? Anyone can tell me why this difference? Again, good question. Why this difference come? Why some fail, some get good marks? Teacher do partiality? No? Then? Yes, very good. Self interest. एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। एक बच्चा बहुत अच्छा करता है मैथ्स में, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाता है हिस्ट्री में, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। जो लॉजिकल सब्जेक्ट होता है सिर्फ वो उसके ब्रेन को अच्छा लगता है, बट हिस्ट्री ही और शी डोंट लाइक। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न, टीचर का प्रेजेंटेशन, बीइंग अ टीचर आई एम सेइंग दिस, टीचर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उसने फॉर्मेटिव नहीं लिया होगा, है ना। फॉर्मेटिव लेता तो उसे पता चलता ये फेल होने वाला है। तीसरा रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और रीज़न क्या हो सकता है? पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, राइट। और चौथा रीज़न, उसकी कंपनी बुरी है। पांचवा रीज़न, टीचर ने एफर्ट ही नहीं डाला कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से अटेंटिव बनाएं। यू नो, टीचिंग में बच्चे से ज़्यादा रोल टीचर का होता है। हाउ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर एब्जॉर्बिंग, कि आपका बच्चा जो आपका स्टूडेंट है ना वो एब्जॉर्ब कर सके। एक टीचर क्या होता है, हमेशा हाई इंटेलेक्चुअल होता है, तो कभी कभी उसकी क्लास में लो इंटेलेक्चुअल के बच्चे होते हैं, तो आपको अपना लेवल वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें टीचर का भी रोल हो सकता है, स्टूडेंट का भी रोल हो सकता है, इवन पेरेंट्स का भी रोल हो सकता है। पेरेंट्स उसको कंजीनियल इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो भी बच्चा फेल हो जाता है। एक छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर उसको प्रॉपर फूड मिले, खाने को मिले, खेलने को मिले, तब वो जाके अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर पेरेंट्स ये सब नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू फेल, ठीक है। होप यू आर डन विथ योर आंसर, सेटिस्फाइंग? नो? ओके, यस। Hello, Mega. I have a little bit of criticism, if you don't mind. So, according to constructivism, it says that knowledge should be culturally and socially around us. We should learn some kind of relevant things which is available in our society. So, in my point of view, I feel like that learning is kind of limitless without any boundary. Like there's no any border in learning, so I feel like we should learn about anything. Like even though we are in this planet, we should learn about moon and from outer star. So if I'm wrong, please enlighten me.
First thing, criticism is always invited. Without criticism, you cannot evaluate anything. अगर आप किसी को भी evaluate करना चाहते हो ना, तो वहाँ critic plus positive दोनों होना चाहिए. And your concept says that constructivism moves around social and cultural boundaries. ठीक है? Constructivism never said it only moves around social and cultural boundaries. उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ सोशल और कल्चरल बाउंड्रीज के अराउंड घूमना है. ठीक है, उसने कहा अगर आप सोशल और कल्चरल बाउंड्रीज के अराउंड घूमोगे तो आप जल्दी और ज्यादा सीखोगे. अंडरस्टूड? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है? आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना. जब हम कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम कोलैबोरेटिव वर्क, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं. ठीक है, तो ये किससे होगी? जो आपका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है ना, वो आपको एक बेस देगा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए. मून की बात करी, ठीक है, अगर आप जानते हो बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है प्लेन में, तभी आपका कंसेप्ट आएगा प्रीवियस नॉलेज से मून पे बिल्डिंग बनाने का. राइट? छोटे बच्चे को नहीं आएगा, लेकिन जैसे ग्रेजुअली बड़ा होगा बच्चा तब उसको आएगा. ठीक है, तो जो आपका सोशली और कल्चरली लर्निंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत लोग जाते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करने. अगर आप कल्चर को छोड़ दोगे कल्चर खत्म हो जाएगा. अगर आप कल्चर को पकड़े रहोगे आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम करेगी. इट डज नॉट सेज ओनली स्टिक टू इट, it says learn from it. Okay, and after learning develop creativity and critical thinking. When creativity is there, critical thinking is there. Moon क्या? आप sun पे भी जाओ. ठीक है, so that is the end point. ये beginning point है कि आप अपने सोसाइटी से पहले सीख लो जो आसपास है, कल्चर से सीख लो. अगर किसी ने अपने कल्चर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनहर्ट कर ली तो उसकी पर्सनालिटी अपने आप में अलग सी दिखती है. आपका लैंग्वेज में कमांड हो जाए. कल्चर कहाँ से आता है? आपका लैंग्वेज बनाता है. इफ़ योर लैंग्वेज इज सॉलिड, डज नॉट मैटर इट्स हिंदी, इंग्लिश और वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, बट द लैंग्वेज यू आर एसोसिएटेड विथ विच इज़ इन योर कल्चर, हैव अ फ्लुएंसी ओवर इट. ठीक है, और अपने कल्चर के बारे में जानो जितना जान सकते हो, क्योंकि वो आपको ग्रूम करता है. यू नो, आई कम फ्रॉम Banaras Hindu University, built by Mahamana ji. He has said one thing. उनकी भी फिलॉसफी है. उन्होंने कहा हर स्टूडेंट को irrespective of whatever religion and culture they follow, in a week 1.5 hour अपने पर्टिकुलर कल्चर स्टडीज़ में देना चाहिए. जिस भी रिलीजन को या कल्चर को वो फॉलो करता है उसको जानने में उसको देना चाहिए. उससे क्या होगा? पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस यू विल नो मैनी थिंग्स. हर कल्चर ये सिखाता है किस तरीके से लाइफ को जीना है. हर कल्चर में डिफरेंट बातों में, सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को निकाल के लेकर आना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं. यू टॉक अबाउट एनी कल्चर, इतनी स्टोरीज हैं, सारी स्टोरीज में ये सारी बातें की गई हैं. ठीक है, तो अगर आपका कल्चर में पकड़ बनी हुई है, अपने कल्चर को कभी मत छोड़ो, कल्चर को पकड़ के रखो, तो वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग देगा, तो वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग देगा, कोलैबोरेटिव वर्क करने का मतलब समझाएगा. ओके, सो माय पॉइंट इज ओनली दिस, यू मे वैरी फ्रॉम माय आंसर. आपका अपना अलग वेरिएशन हो सकता है, बट योर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म नेवर सेड दैट जस्ट स्टिक अराउंड इट. दे सेड स्टार्ट फ्रॉम हियर. आफ्टर नोइंग दिस यू कैन reach up. Okay, something else? So No? I would like to say that so I think that Buddhism, the thought of Buddhism and constructivism is very similar, because Buddha said that I show you the path but you have to walk on the Yes. path. So I think it's very similar. So Exactly. what do you It's want to say? constructivism. Yeah, Yes, what do you yes. want to say about it? And my next question is that you sounded like the constructivism is a new thing.
So what is the difference between constructivism and the Gurukul system of teaching? And Gurukul system. Gurukul system. One thing I didn't say constructivism is a new thing. I said it is being implemented in education system. Okay, world has recognized it through Jean Piaget and Vygotsky. दो साइकोलॉजिस्ट ने लोगों को बताया और लोगों ने अडॉप्ट किया. रीजन अगेन, कल्चर से हम छूट चुके हैं ना, हर कल्चर में है ये. यू सेड अबाउट बुद्धा, इट्स इन वेदास ऑल्सो. ठीक है, अगर आप वेदास पढ़ोगे तो उसमें भी यही बात की गई है. एवरीथिंग इज देयर इन योर कल्चर. हमने कल्चर को छोड़ दिया, हम एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को मानने लगे. ठीक है, और हम गुरुकुल सिस्टम और आज के सिस्टम के बीच का जो सिस्टम है उसमें हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो नहीं कर रहे थे. हम क्या कर रहे थे? सिर्फ बुक लर्निंग कर रहे थे. दैट इज टर्म्ड एज रूट लर्निंग. ठीक है, रूट लर्निंग का मतलब क्या? एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, चैप्टर पढ़ा दिया जाता है. यू हैव टू जस्ट गो, यू हैव टू मग इट अप एंड यू हैव टू गो इन द एग्जाम एंड यू हैव टू वॉमिट. राइट, उसके सिवा कुछ नहीं होता. आपकी ना तो क्रिटिकल थिंकिंग बनी, ना तो क्रिएटिविटी बनी. आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग कहाँ गया? नहीं आया ना. सिर्फ आपने लर्न किया, उसको वहाँ पे डाल दिया. एजुकेशन सिस्टम में हमारी कंट्री में, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब जैन पियाजे और वाइगोस्टी ने इसको समझाया तो लोगों ने समझा. और फिर क्यों? क्योंकि वो लोग इंटेलेक्चुअल थे. ठीक है, और हमेशा ईस्ट का बहुत ज़्यादा रुझान वेस्ट की तरफ रहता है. हम वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें अडैप्ट करते हैं, है ना, और उसको अच्छा समझते हैं. तो दैट इज़ हाउ इट केम इनटू अ सिस्टम. ठीक है, बट इट इज़ नथिंग न्यू. ठीक है, एज यू हैज़ रेजोनेटेड इट विद द लॉर्ड बुद्धा टीचिंग, है ना. सो सिमिलरली यू विल फाइंड, अगर तुम आज अपने कल्चर में और डेप्थ में जाओगे ना, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज देयर. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अपने कल्चर को जानो, जितना जानोगे उतने इंटेलेक्चुअल बनोगे और उतना लोगों के बीच में बात करने की क्षमता आएगी आपके अंदर. एंड गुरुकुल सिस्टम वॉज फार अवे अहेड. गुरुकुल सिस्टम और बहुत ज़्यादा एडवांस था. योर क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द डिफरेंस इन गुरुकुल सिस्टम. सी, इन गुरुकुल सिस्टम vocational education was there. ठीक है, in Gurukul system debates was there, in Gurukul system discussion was there, and in Gurukul system always comprehensive knowledge was given. एक नॉलेज दे के आपको छोड़ दिया जाता था और बोला जाता था इस पे आप अपना नॉलेज बिल्डअप करो. प्लस वन वेरी बिग थिंग, देयर वाज ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा होता था. ओरल ट्रांसमिशन मतलब अभी हम लिखते हैं तो हमको याद रहता है ना, वो सुन के उसका श्रवण करते थे, अभ्यास करते थे, और दे यूज टू लाइक डेली प्रैक्टिस व्हाट दे हैव हर्ड और उसको अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते थे, तब जाके उनको वो चीज़ें आती थी. तो एट दैट टाइम थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइम. सो दैट इज़ वाई दे वर फार अहेड फ्रॉम अस. ओके, समथिंग एल्स? हाँ, येस, वेरी गुड. स्पीक, कम. अच्छा, I should come. Okay. I can say it like. Without mic? Yeah. Okay, speak. As you said before that. You are able to listen? No, use mic. I can speak loudly. Okay, then speak loudly. Let me hear. As you have said before that, all we need is a knowledge. But what I believe is that we need a wisdom. So how can you differentiate the two terms, wisdom and knowledge? How wisdom will come? How wisdom will come? Through knowledge. What we are doing in constructivism. Constructivism में हम क्या कर रहे हैं? When I said नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने के पास उसने जो क्वेश्चन अभी पूछा था, मैंने क्या बोला? आप क्रिएटिविटी बिल्ड करोगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करोगे. जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है दैट इज योर विजडम. क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है. ठीक है, तो नॉलेज के बिना विजडम इज नॉट पॉसिबल. नॉलेज आपका स्टेपिंग स्टोन है. आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई आपको आके से खाने में थोड़ी ना दे देगा, लो खा लो नॉलेज. You haven't described about the wisdom. Actually, you have to mention the wisdom, so people will know about there's a wisdom. Your subject is philosophy? No. B.Ed?
Which B8 you are? I have not seen you in any of my class. 2. Acha, you went for tour. Second year? Acha, BA, B8, 2. Okay. Actually, I'm not getting your question. What you mean to say, I have not touched the concept of wisdom. I have only focused on knowledge. So that is not my problem. You gave me this topic only to speak. Next time I will come and I'll talk about wisdom. Okay? Then you have to sit in front. Okay? Okay, something else? Bus? Overflowing? Okay, anything else? Okay, one thing what I want to tell you is, last thing, I will end on this note. I think my time is also getting over. Okay, whatever we talk about, एक concept है which is given in NEP 2020, National Education Policy 2020. Have you heard about it? अभी नई पॉलिसी आई है एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की जा रही है. अब आप यही जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म के फॉर्म में नहीं पढ़ोगे एनईपी में. उन्होंने एक नाम दिया है, दैट इज फ्लिप क्लासरूम स्ट्रैटेजी. फ्लिप क्लासरूम स्ट्रैटेजी. फ्लिप का मतलब क्या होता है? यू ऑल हैव योर राइटिंग पैड्स. अभी आप इसको फ्लिप कर रहे हो. अब दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. आई हैव फ्लोटेड अ आइडिया. स्टेज 1 आई हैव डन. अब आप इसको खोजना, फ्लिप क्लासरूम क्या होता है. आपको एक नया डायमेंशन मिलेगा लर्निंग का, एंड इट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म ओनली. फ्लिप क्लासरूम स्ट्रैटेजी. एनईपी कहता है कि 21st सेंचुरी के बच्चों को आप फ्लिप क्लासरूम स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पढ़ाओ. अगेन उसका बेसिस कंस्ट्रक्टिविज्म ही है, ठीक है. और 21st सेंचुरी की स्किल्स किसी को पता है क्या है? हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं आप बीएड कर रहे हो, कुछ स्किल्स आप में डेवलप होनी चाहिए. वो स्किल्स क्या है? कोलैबोरेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. ये जितने सी है ना, सारे सी आप में सी होने चाहिए, मतलब आप में दिखने चाहिए. पढ़ाई का आज का जो मेन एंड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आप इन स्किल्स को अपने अंदर ग्रूम करो, ठीक है. क्रिएटिव थिंकिंग, communication skill, collaborative skills and critical thinking. Yes, critical thinking is very important. सारी बात आपकी critical thinking में आके जाती है, because critical thinking is your wisdom. ठीक है, जितना आप critically सोचोगे वो आपका wisdom reflect करता है. Okay, on this note I stop and thank you for being a wonderful listener and good questions were also posed on this topic. All the best for your future.